Assalamualaikum grade 6, how are you all? I expect that you all are safe and sound. Grade 6, this is your English lesson, and today we will be dealing with your unit number 9, that is Old Brown Horse. Okay, so open your page number 45 of English book, and there you can see your unit number 9, that is Old Brown Horse. First, I'll read this whole page for you, and you will be reading it with me by placing your fingers on the book, and after the reading we'll come to the explanation. So let's get started with the reading. Place your fingers on the book. The Old Brown Horse. The old brown horse looks over the fence in a weary sort of way. He seems to be saying to all who pass, "Well, folks, I have had my day. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind." As they are dashing past in their motor cars, a horse who is lame and half blind. The old horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lanes with the one who was fond of him, but his owner rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days that used to be and all of the times they had. Sometimes a friendly soul will stop near the fence where tired old head rest wearily on the topmost bar, and friendly word is said. Then the old brown horse gives a little sigh as he feels the kindly touch of a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. So, if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. He will love the touch of your soft hand, and I know he will seem to say, "Oh, thank you, friend, for the kindly thought for a horse who has had his day." Okay, students, so this was all the reading of Old Brown Horse, and now we will come to the explanation. Okay, so this is the story of a horse who is now old and who is not going anywhere now, and this horse is trying to miss his old times where he used to travel, where he was the favorite of everybody. But now this horse is kind of very much old, and nobody is taking him as a friend, and nobody is talking to him, and this horse is feeling sad about it, right? The old brown horse looks over the fence. Over the fence, now fence जिसको उर्दू में जंगला कहा जाता है, it is a small wall which is made for the animals to stop them from going out. So now there is an old brown horse who is looking over the fence. वो जंगले के बाहर दुनिया देख रहा है in a weary sort of way, एक बहुत ही थके हुए अंदाज में. weary थका हुआ, sort of way, type of way या अंदाज में, ठीक है. So he is looking over the fence, and he is very tired, and he is looking to the outside world. He seems to be saying to all who pass. वो seems to be saying, वो नज़र आता है कि जैसे वो बोल रहा हो to all who pass, जो कि यहाँ वहाँ से गुज़र रहे हैं. Well, folks, अच्छा लोगों, folks is लोगों. Well, अच्छा, I have had my day, मैंने अपने दिन जी लिए हैं. I have had my day, मैंने अपने दिन जी लिए हैं. I am simply watching the world go by, और मैं यहाँ पे खड़े होके देख रहा हूँ दुनिया को जो कि आ रही है और जा रही है. go by, आके चले जाना. watching, seeing, देखना. simply, सिर्फ. तो वो कहता है कि देखो लोगों, मैंने अपने दिन जी लिए, और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ आते जाते हुए. and nobody seems to mind,
और कोई भी फ़िक्र नहीं करता मेरी, कोई भी मेरी तरफ नहीं देखता। माइंड मीन्स किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना। तो वो कहता है कि कोई भी, नोबडी, कोई भी नहीं इंटरेस्ट लेता मुझ में, ठीक है। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स, क्योंकि अब लोग बिज़ी हैं, जा रहे हैं। डैशिंग पास्ट मीन्स वक्त गुजारना। तो कोई भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझसे बात नहीं करता, मुझे माइंड नहीं करता, क्योंकि एज दे आर, वो डैशिंग पास्ट, वो वक्त गुजार रहे हैं अपना, इन देयर मोटर कार्स, अपनी गाड़ियों में। अ हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड। अब वो कहता है कि मैं तो वो वाला हॉर्स हूँ जो कि लेम है। लेम मीन्स एक ऐसा लिविंग बीइंग या ऐसा लिविंग थिंग जिसका कोई बॉडी पार्ट ख़राब हो, ठीक है। किसी की एक टांग ख़राब हो, एक आँख ख़राब हो, तो उनको लेम कहा जाता है। तो ये जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स है, ही इज़ सेइंग दैट people are going for their works, they are not taking interest in me, and they are passing their time in their motor cars and nobody wants to ride with me. पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब लोग ट्रैवल करते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, तो वो घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एंड नाउ अभी मोटर कार्स हैं, बाइक्स हैं, बाइसिकल्स हैं, तो नोबडी ट्रैवल्स ऑन हॉर्सेस। इसीलिए वो कहता है कि मैं तो वैसे भी माजूर, लेम, माजूर, और आधा अंधा। आधा अंधा मीन्स उसकी एक आँख जो है वो अंधी है और दूसरी जो उसकी काम कर रही है। तो वो कहता है मैं वैसे भी माजूर हूँ, मैं आधा अंधा हूँ, और लोग अपने मोटर कार में वक्त गुजार रहे हैं, कोई मेरी खैर ख़बर नहीं रखता। The old brown horse has a shaggy coat. Shaggy coat, old coat, ठीक है। उसका जो कोट था ओल्ड ब्राउन हॉर्स का, वो शैगी था, वो बहुत ही ओल्ड कोट उसने पहना हुआ था। But once he was young and trim, लेकिन जब वो यंग था, जब वो जवान था, जब वो चुस्त और दुरुस्त था। ट्रिम मीन्स वेरी फाइन, बहुत अच्छा, स्टाइलिश, चुस्त दुरुस्त। तो जब वो जवान था और ट्रिम था, चुस्त दुरुस्त था, he used to trot, और वो जाता था। whenever the animals are going from here to there, तो हम उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं trotting। हम ये नहीं कहते कि वो वॉकिंग कर रहे हैं, हम कहते हैं they are trotting। तो ये जो हॉर्स था ये ट्रॉट करता था, जाता था इधर उधर, थ्रू द वुड्स, जंगलों में वो जाता था, एंड लेन्स, और डिफरेंट तरीके के रास्ते वो तय करता था, ठीक है। और वो इधर उधर जाता था। with the one who was fond of him, वो किसके साथ जाता था जंगलों में और रास्तों पे, लेन्स में, वुड्स में, वो किसके साथ जाता था? with the one, उसके साथ, who was fond of him, जो कि उससे बहुत प्यार करता था। यानी उसका जो ओनर था, his owner used to take him to the jungles, to the woods, to different areas, to different lanes, okay, with the one who was fond of him, अपने ओनर के साथ वो जाता था जो कि उससे बहुत प्यार करता था। फॉन्ड मीन्स लाइकिंग और लविंग। बट हिज ओनर राइड्स इन अ मोटर कार, लेकिन अब जो वो ओनर है जो कि पहले इस हॉर्स के साथ डिफरेंट जगहों पे जाता था, ही हैज़ नाउ अ मोटर कार। राइड्स मीन्स टू गो इन अ मोटर कार। अब वो हॉर्स को छोड़ के गाड़ियों में सफ़र करने लगा है। राइड मीन्स टू गो फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहाँ जाना। एंड इट मेक्स हिम फील क्वाइट सैड, और जब हॉर्स को ये चीज़ फ़ील होता है कि अब मेरा ओनर मेरे पास आता नहीं है, मेरे साथ कहीं जाता नहीं है, तो वो जो हॉर्स होता है वो बहुत सैड हो जाता है। मेक्स हिम बना देता है फील, कि वो महसूस करे क्वाइट सैड, थोड़ा सा खफा। When he thinks of the days, जब वो घोड़ा सोचता है उन दिनों के बारे में, थिंग्स ऑफ द डेज, सोचना उन दिनों के बारे में, दैट यूज़ टू बी, जो कि हुआ करते थे पहले ज़माने में, यूज़ टू बी हुआ करते थे, एंड ऑफ ऑल द टाइम्स दे हैड, और जब भी वो हॉर्स सोचता है अपने ओनर के बारे में, अपने वो जो सफ़र, वो जो अपने ओनर के साथ उसने किया, जब वो उनके बारे में सोचता है तो वो सैड हो जाता है। ऑल द टाइम्स, वो सारा वक्त दे हैड, जो उन्होंने साथ गुजारा था। समटाइम्स, कभी कभी, अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप, एक फ्रेंडली सोल, सोल मीन्स ह्यूमन और अ पर्सन, सो कभी कभी अ फ्रेंडली सोल, एक बहुत ही दोस्ताना इंसान जो होगा वो रुक जाएगा, ही विल स्टॉप।
नियर द फेंस, जंगले के साथ, ठीक है, वो जो घोड़े के आगे वो जो जंगला लगा हुआ था, यू कैन सी इन द पिक्चर डाउन बिलो। सो जंगले के साथ कोई ना कोई अच्छा इंसान जो है, फ्रेंडली इंसान जो है वो रुक जाएगा। नियर द फेंस वेयर द टायर्ड ओल्ड हेड, जहाँ पर वो थका हुआ बूढ़ा सर जो है रेस्ट, आराम कर रहा होगा। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर डाउन बिलो, आपकी बुक में ही, द ओल्ड हेड, दिस ओल्ड हॉर्स हेड इज़ रेस्टिंग, वो वहाँ पे आराम कर रहा है। कहाँ पे? फेंस के ऊपर उसे सर रख के आराम कर रहा है वो। तो कभी कभी कोई अच्छा दोस्ताना इंसान जो होगा वो इस जंगले के साथ आके रुक जाएगा। इसको बाड़ भी कहते हैं, ठीक है, बाड़ भी उर्दू में जंगले को कहते हैं। तो वो इसके साथ आके रुकेगा, जहाँ पे वो हॉर्स जो है वो अपना पुराना सर लिए हुए आराम कर रहा होगा। विरली मतलब थके हुए अंदाज में, बहुत ही वो थके हुए अंदाज में, बिकॉज ओल्ड पीपल मोस्टली फील टायर्ड। ओके, ऑन द टॉप मोस्ट बार मीन्स जो फेंस यानी जो बाड़ है उसके जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है या सबसे ऊपर वाला तख्ता जो है उस पर उसने सर रखा होगा और वो रेस्ट कर रहा होगा, बहुत ही थके हुए अंदाज में, विरली थके हुए अंदाज में वो रेस्ट कर रहा होगा। और कोई ना कोई अच्छा या दोस्ताना इंसान जो होगा वो आके इसके साथ रुक जाएगा। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज़ सेड, और कोई होगा जो कि दोस्ताना अल्फाज कहेगा उस हॉर्स के लिए कि हाय, हाउ आर यू डूइंग, हैव यू हैड योर लंच, है ना, एनिमल्स के साथ जैसे प्यार करते हैं। अ फ्रेंडली वर्ड, अ काइंड वर्ड इज़ सेड, फिर वो हॉर्स के साथ अच्छी अच्छी दोस्ताना बातें करेगा। देन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव्स अ लिटिल साई, देन फिर द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, वो जो पुराना ब्राउन कलर का हॉर्स है बूढ़ा सा, गिव्स अ लिटिल साई, वो दे देता है। लिटिल मीन्स एक छोटा सा, साई मीन्स एक छोटी सी सांस वो ले लेता है, वो जो हम कहते हैं सुकून की सांस लेना, है ना। सो वो भी एक छोटी सी सुकून की सांस ले लेगा तब जब कोई आएगा, बाड़ के साथ खड़ा होगा और उसके साथ वो बात करेगा दोस्ताना अंदाज में। एज ही फील्स द काइंडली टच, क्योंकि वो हॉर्स जो है वो फील करेगा एक बहुत ही नरम एहसास। काइंडली टच, नरम एहसास, ठीक है, जब आपको कोई प्यार प्यार से टच करे, क्योंकि वो खुश होगा कि चलो कोई तो है जो मुझसे बात करने आया है। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन, वो टच कहाँ पे होगा? ऑफ अ हैंड, वो एक हाथ का होगा वो टच। ऑन हिज मेन, नाउ मेन इज़ द दैट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हॉर्स हेड। ये जहाँ पे आप ये हैंड को देख रहे हो, ये हॉर्स के जहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको मेन कहते हैं। जो आँखें और नाक और उसके ऊपर का जो घोड़े का हिस्सा होता है थोड़ा सा फ्लैट, उसको मेन कहते हैं, ठीक है। So now the horse is feeling a very kind touch, a very soft and nice touch which is very friendly of somebody's hand on his mane और his shaggy coat, और कभी कभी कोई उसके shaggy coat पर हाथ रख के वैसे उसको पैट करेगा। Whenever we pat animals with love, you know what we do, we just pat them, हम उनको प्यार प्यार से सहलाते हैं, ठीक है। The same is the horse is saying that somebody will pat my mane, जो मेरा चेहरे का जो forehead लंबा सा है उसको कोई पैट करेगा, उसको कोई सहलाएगा, या मेरे कोट को कोई सहलाएगा, मेरे पुराने कोट को कोई प्यार करेगा। एंड ही डजंट माइंड सो मच, और वो हॉर्स जो है वो इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा, वो इस चीज़ को बुरा नहीं जानेगा, वो खुश होगा, ठीक है, वो सुकून की सांस लेगा। He doesn't mind so much means he will not feel bad about it. So if you pass by the field, so now the poet is referring to you. If you pass by the field one day, कि अगर आपका किसी दिन खेतों की साइड से अगर गुज़र हो, पास बाय गुज़रना, फील्ड खेत, वन डे किसी एक दिन, तो अगर आप किसी एक दिन जो है खेतों के साइड से गुज़र रहे हैं, जस्ट स्टॉप, वहीं पर रुक जाएं, फॉर अ वर्ड और टू, एक दो अल्फाज कहने के लिए। वर्ड मीन्स अल्फाज, वन और टू, फॉर अ वर्ड और टू, एक अल्फाज या दूसरा, मतलब एक दो अल्फाज के लिए रुक जाएं। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, कि अगर कहीं पे वहाँ पे ओल्ड ब्राउन हॉर्स हो तो वहाँ पे रुक जाएं और उसके साथ एक दो बातें कर लें, एक दो अल्फाज कहें उसे।
who was once as young, जो कि एक ज़माने में वो ओल्ड ब्राउन हॉर्स जो था वो एक ज़माने में he was very young. once means एक दफ़ा, वो था एक दफ़ा बहुत ही जवान, बिल्कुल हमारी तरह. एंड एज़ फुल ऑफ लाइफ एज़ यू, और वो बिल्कुल हमारी तरह एनर्जी रखता था, बिल्कुल जैसे यंग लोग फुल ऑफ लाइफ होते हैं, वो कितना इन्जॉय करते हैं ज़िंदगी को. तो वो ब्राउन हॉर्स भी था, पुराना जो हो चुका है, नाउ ही इज़ ओल्ड, बट व्हेन ही वाज यंग ही वाज वेरी फुल ऑफ लाइफ. ही यूज्ड टू गो प्लेसेस, ही यूज्ड टू टॉक टू पीपल. So back in the day he was also this much young and full of energy as you all, as I am, but now he is old and nobody is there to talk to him. So if somebody sees a old horse who is standing all alone, so you should stop and talk to them. He will love the touch of your soft hand. अब वो जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स है उसको पसंद आएगा, वो खुश होगा. ही विल लव, उसको पसंद आएगा द टच, आपका छूना, ऑफ योर सॉफ्ट हैंड, आपके जो सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ जब उसे छूएंगे, जब उसे प्यार करेंगे तो उसको मज़ा आएगा, वो खुश होगा. एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, ही विल सीम टू से, और वो यही कहेगा, ओ थैंक यू फ्रेंड, तुम्हारा शुक्रिया दोस्त, फॉर द काइंडली थॉट, इस प्यारी सी सोच के लिए, इस प्यारे से एक्शन के लिए, फॉर द हॉर्स हु हैज़ हिज डे, उस घोड़े के लिए जो अपने दिन गुजार चुका है. राइट. सो मोरल फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट you see your grand elders, your grandmother, your grandfather, they are old, okay, and when they are old they are sitting in their room, they are all alone. या तो वो सारा दिन इबादत करते हैं, नहीं तो अकेले बैठे रहते हैं खामोश से. They don't talk to anybody that much, and they miss their old days, same like this old horse. बट इफ़ यू सी दैम, सो अगर आप उन्हें इस तरह से अकेले देख लेते हो तो आप जाया करें, उनसे बात किया करें, प्यार किया करें उनसे, उनकी खिदमत किया करें ताकि वो भी खुश हों. क्योंकि एक वक्त था जब वो भी हमारी तरह जवान थे, अपनी लाइफ में बिज़ी थे, और अब वो इस तरह नहीं है. तो दैट्स कम्प्लीटली ओके, स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैम. दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस poem, right? And that's it. grade 6. coming to the word meanings. fence, half wall barrier, जो बाड़ होती है उर्दू में जिसको कहते हैं, ये आधी दीवार होती है एनिमल्स को बाहर जाने से रोकने के लिए. weary, टायर्ड, थका हुआ. folks, people, लोग. simply, only, सिर्फ. go by, pass by, गुजर जाना. mind, watch, देखना या इंटरेस्ट लेना. dashing, exciting, मज़ेदार. lame, डिसेबल, माजूर. शैगी, रफ़, पुराना और ख़राब. कोर्स, जिसको हम कहते हैं ट्रिम. बेस्ट एंड नीट, बेहतरीन या साफ़ सुथरा, अच्छी हालत में जो होता है. ट्रॉट, राइड यानी चलना, यहाँ से वहाँ जाना. एनिमल्स के लिए हमेशा ट्रॉट यूज़ होता है. हम ये नहीं कह सकते कि द हॉर्स वॉज वॉकिंग, इट इज़ रॉन्ग, द हॉर्स वॉज ट्रॉटिंग. ओके. फॉन्ड ऑफ, लाइकिंग या लविंग, किसी चीज़ को प्यार करना या पसंद करना. सोल, पर्सन के लिए इस्तेमाल. सोल बेसिकली रूह को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंसान यानी शख्स के लिए यूज़ हुआ है. टॉप मोस्ट, हाईएस्ट, सबसे ऊपर. मेन, द हैरी पार्ट अबव द नेक ऑफ द हॉर्स, ये जो एरिया होता है हॉर्स का, ऊपर वाला एरिया जहाँ पे बाल होते हैं, और उससे नीचे का जो एरिया होता है यानी नाक और आँख के ऊपर का जो हिस्सा होता है, और घोड़े का वो वाला हिस्सा जहाँ पे बहुत सारे बाल होते हैं, उसको मेन कहते हैं. ठीक है. फुल ऑफ लाइफ, इन्जॉइंग द लाइफ. फुल ऑफ एनर्जी, वो शख्स जो कि फुल ऑफ एनर्जी हो, जो कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इन्जॉय करता हो, इधर उधर जाता हो और सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हो. सो दैट्स इट grade 6. आई होप यू एन्जॉय. टिल द नेक्स्ट राइड लेसन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. प्लीज़ डोंट गो आउट, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.